وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں۔ اگر آپ کے پاس اپنی بائبل مقدس ہے تو ضرور لے لیجئے گا۔ جتنے لائیو دیکھ رہے ہیں، پاسٹر جاوید آج ہمارے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کریں۔ جی سر۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ Thank you very much Pastor Junaid Sahib and Messiah Ministries and wonderful worship of Brother Zafar when he was singing. I sense the presence of the Lord. So very well done. So thank you Jesus for gathering together the brethren and worshiping and serving the Lord together. So میرا ایمان ہے آج کا پیغام ہم تمام سننے والوں کو، تمام عزیزوں کو، میرے لیے، ہم سب کے لیے باعث برکت ہوگا، کیونکہ کتاب مقدس سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوتا ہے۔ When we worship the Lord we are blessed. When we preach the gospel we are blessed. So let's go to the text and hear what the Lord is saying to you tonight. آئیے میرے ساتھ کھولیے نئے عہد نامہ میں سے افیسیوس کا 5واں باب، اس کی پہلی 2 آیات۔ بس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو، جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آج کا موضوع ہے imitate your God، اپنے خدا کی مانند بنے۔ مسیحی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کی مانند بننا ہے۔ ہمارا سپریم گول یہ ہے کہ ہم نے خدا کی مانند بننا ہے۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ ہم نے یسوع مسیح کی مانند بننا ہے، خدا کی مانند بننا ہے، بیٹے کی مانند بننا ہے۔ روح القدس کے اثار، روح القدس کا کردار، اس کا روح کا پھل جس کی زندگی میں ہے وہ مسیحی ہے، وہ سچا مسیحی ہے، وہ سچا پرستار ہے، وہ سچا خادم ہے، وہ چنا ہوا ہے، وہ برگزیدہ ہے، خدا نے اسے بلایا ہے۔ آئیے آج اس بات پر پھر سے غور کریں۔ God is calling you tonight. آؤ ہم مسیح کی مانند بنے، آؤ ہم خدا کے بیٹے کی مانند بنے۔ اس آیت میں لکھا ہے بس عزیز فرزندوں کی طرح۔ یہ جو لفظ بس ہے انگریزی زبان میں therefore ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اوپر جو کچھ پچھلے ابواب میں جو کچھ لکھا گیا ہے، اس سب کا پیچھے 4 ابواب سے گہرا تعلق ہے، اس کا کنیکشن ہے۔ آئیے اختصار کے ساتھ، یہ پال کا وہ لیٹر ہے جس کے بارے میں رائٹرز نے بڑے بڑے کامنٹس لکھے ہیں مسیحی تاریخ میں۔ آئیے جانیے مصنفین نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے اختصار کے ساتھ۔ اس کے بارے میں ایک مصنف کہتا ہے افسیو پالوس کا جو خطوط ہے اس کی ملکہ ہے، کوئین آف ایپسٹلز۔ پھر ایک رائٹر کہتا ہے افسیو کراؤن آف سینٹ پالس ہے، لیٹرز میں جس نے جتنے خطوط لکھے اس دا کراؤن۔ پھر جان پائپر اس کے بارے میں کہتے ہیں the glory of God in imitation، خدا کا جلال جب ہم اس کی مانند بنتے ہیں، جب اس جیسی گفتگو کریں گے، جب اس کی طرح سوچیں گے، جب اس جیسی تعلیم ہوگی، جب اس جیسا کردار ہوگا، جب اس جیسا اختیار ہوگا، تو میں آپ کو یہ خوشی کی خبر دے رہا ہوں۔ I have a good news for you. You will never be the same. آپ تبدیل ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی، آپ کے حالات، آپ کے رویے سب بدل جائیں گے۔ آپ حالات کے ہاتھوں نہیں، آپ حالات پر غالب رہیں گے۔ So, Jesus is calling you tonight. میرا ایمان ہے آپ سب آج کثرت سے برکت پائیں گے، اور میرا آج کا پیغام آپ سب کے لیے تسلی، ترقی، کریکشن اور برکت کا باعث ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے اختصار کے ساتھ دیکھ لیں کہ یہ سارا خط کیا ہے۔ پہلے باب میں ایک بڑی برکت یہ ہے کہ ہمیں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت دے دی گئی ہے۔
We will not receive in the future or today. We have already been given. ये पहले ही आपको दे दी गई है। दूसरे बाब में निजात मुफ्त है, फसल से है, कामों से नहीं है। क्यों हमें निजात की जरूरत है? क्योंकि हम गुनाहों के एतबार, due to the sins, we are dead in our trespasses. हम गुनाहों के एतबार, गुनाहों में मुर्दा है, because of sin, we are dead. फिर तीसरे चैप्टर में पॉल और ट्रुथ्स को शेयर करता है कि खुदा ने और गैर अक़वाम ने मसीह यीशु में यहूदियों के साथ, ज्यूस के साथ वो एक हो गए हैं। Now Jews and Christians are or in Christ they can become one and one new creation. हम मसीह यीशु में एक हैं। चौथे चैप्टर में पॉल ये कहता है जिसके पास बुलावा है उसकी जिंदगी में औसाफ है। पहली आयत अगर आप पढ़ें तो दूसरी आयत में ये औसाफ कलम बंद किए गए हैं। फिर जब हम इस चैप्टर के आगे बढ़ते हैं तो दो गारमेंट्स का जिक्र है। एक गारमेंट है जिसको हमने उतारना है, एक गारमेंट है जिसको हमने पहनना है। पुरानी इंसानियत के लिबास, कपड़े को, गारमेंट को हमने उतारना है और नई इंसानियत के कपड़े को, लिबास को हमने ज़ेब तन करना है। जब आप ये लिबास पहन लेंगे तो फिर आपकी कई जंगें जो आपकी जिंदगी में जारी हैं वो थम जाएंगी, आप गालिब आ जाएंगे, आप कामयाब रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर मसीह ने सूरत पकड़ना शुरू कर दी है और आप दूसरे लफ्जों में यीशु मसीह की मानंद बनना शुरू हो गए हैं। लेट्स टॉक मोर। पांचवें बाब में जब हम फिर पहुंचते हैं तो पॉल ये कह रहे हैं बस अजीज फरजंदों की तरह खुदा की मानंद बनो। बस अजीज फरजंदों की तरह। What does it mean? आइए इसको और हम देखेंगे, लेकिन लेट्स डिफाइन फर्स्ट कि खुदा की मानंद बनने का क्या मतलब है। ये बात याद रहे, खुदा की मानंद बनने का मतलब खुदा बनना नहीं है, ओमनी प्रेजेंट बनना नहीं है, ओमनिशेंट बनना नहीं है, कादर मुतलक बनना नहीं है, हासिर व नासिर बनना नहीं है, हमाजार हमादान बनना नहीं है। बल्कि जब हम इस टेक्स्ट में स्पेशली दो बातों की खास तो आपसे की जा रही है। नंबर वन, आपने मुआफी में खुदा जैसा बनना है और नंबर टू, आपने मोहब्बत में खुदा जैसा बनना है। ये दो बातें हैं जो इस टेक्स्ट में हैं जिनको आपने फोकस करना है, लर्न करना है। यू नीड टू लव लाइक क्राइस्ट, यू नीड टू फॉरगिव लाइक क्राइस्ट। सो आइए इनको हम और गहरे तौर पर जानेंगे, पहचानेंगे कि इसका क्या मतलब है। ब्रीफली और प्रिसाइसली जब पॉल ये लफ्ज मानन को यूज कर रहा है तो इसको समझना बहुत जरूरी है। हमारा ये जो लफ्ज है मानन बनना, ये यूनानी जुबान से जब अंग्रेजी में आया तो एक लफ्ज माइम्स, जो बच्चे मॉडर्न स्कूल्स में पढ़ते थे, नो व्हाट आर द माइम्स। माइम्स में वो क्या करते हैं? दे डोंट से एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं कहते, वो बोलते नहीं है, वो एक्सप्रेस करते हैं। फिर वो एक लफ्ज भी नहीं बोलते। सो पॉल जो यहां चर्च को कह रहा है वो ये है, मोहब्बत की सिर्फ बातें मत कीजिए। मोहब्बत को जो है उसका इजहार कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, उसमें जिंदगी बसर कीजिए। वॉक इन लव, एक्सप्रेस इट, वॉक इन लिव इट। सिर्फ इसकी बातें मत कीजिए, शो इट प्रैक्टिकली, शो इट प्रैक्टिकली। दुनिया के सामने इस मोहब्बत का इजहार कीजिए। लिव
it before the world. दुनिया के सामने इसका इजहार कीजिए। जब पॉल मुख्तसर उनको कह रहा है खुदा की मानंद बने, तो वो उनको चैलेंज कर रहा है कि तुमने मेरी मानंद बनना है जैसे मैं मसीह की मानंद बनता जाता हूं। So we need to learn two things tonight. How I can become like God. खुदा की मानंद मैं कैसे बन सकता हूं? नंबर 1, अगर आपने खुदा की मानंद बनना है तो आपने खुदा की प्रस्तिश करना सीखना है। अभी जब भाई प्रस्तिश कर रहे थे, अभी जब मैं भाई खुरम अबेद जो इंग्लैंड में आप रहते हैं, बेसिकली he is from Pakistan, when we worship the Lord we always know the glory of God is coming. The glory of God is manifesting. So I bless the true worshippers of my nation. I prophesy upon the nation of Pakistan, especially upon the worshippers of this nation. God is saying, I'm going to manifest great glory of God through you all over the globe. Khuram, my brother in England, God is saying, well done, my servant. Keep it up. Grow more. Do well. I'm gonna increase. I'm gonna extend and expand your territory in the name of Jesus. I bless you. Don't be upset. Don't be discouraged, my brethren. खुदा आपके साथ है। खुदा ने आपको चुना है। खुदा आपके साथ है। पहला तरीका जिससे आप खुदा की मानंद बन सकते हैं वो यह है, आइए प्रस्तिश दरियाफ्त कीजिए। प्रस्तिश गीत गाने का नाम नहीं है। प्रस्तिश रूह से निकलती और रूहों को शादमान और बहाल करती है। So worship God. वर्शिप वो नहीं गाएगा जो सौसमन शराब पीता है और आकर गा देता है सुर और लय के मुताबिक। वर्शिप वो करे जिसकी जिंदगी में खुदा का बेटा रहता है, खुदा रहता है, रूह कुछ से भरा हुआ है। I don't need singers, I need worshippers in the church. खुदा सिंगर्स को नहीं, खुदा वर्शिपर्स को ढूंढ रहा है। खुदा वर्शिपर्स को ढूंढ रहा है। आप इस कदर वैल्यूएबल हैं। एक और तरीका जिससे आप खुदा की मानंद बन सकते हैं जो इस मतन में से मैंने बताया, आइए मुआफी को जानिए। हम मुआफ नहीं करते एक दूसरे को। हम कलाम भी सुनाते हैं, हम गीत भी गाते हैं, हम प्रस्तिश भी करते हैं। We do many things, Christian things, but we do not worship. We do not forgive one another. जब मैं आपको और अपने आप को भी कलाम सुना रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मुआफी वो नहीं है जिसको आप मुआफी कहते हैं। मुआफी वो है जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, उसके मियार के मुताबिक है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मुआफी टोटल फॉरगिवनेस है। टोटल फॉरगिवनेस। खुदा ने जब हमें मुआफ किया है, मसीह ने जब हमें मुआफ किया है, तो उसने पूरा मुआफ किया है। पूरे गुनाह मुआफ किए हैं, सारे गुनाह माफ किए हैं। वो भूल गया है तेरे गुनाहों को, वो भूल गया है तेरी बदी को, वो भूल गया है तेरे जिनसी गुनाहों को, नापाकी को। इसलिए तू भी भूल जा जिसने तेरा कसूर किया है। ये क्रिश्चियन फॉरगिवनेस है। इसकी क्लासिक एग्जांपल इन द ओल्ड टेस्टामेंट इज ग्रेट जोसेफ। उसने जब अपने भाइयों को माफ किया तो फिर वो बाप की तरह परवरिश करता रहा। आइए खुदा से फजल मांगिए, मैं कैसे खुदा की मानंद बनूं। Forgive. And I'm not saying forgive, I'm saying forgive like Christ. Forgive like Jesus. Forgive on the standard of the word of God. खुदा के
कलाम के म्यार पर के मुताबिक मुआफ कर। मैं भी आपको लोग कहेंगे कि आपने मुआफ कर दिया है, बट होली स्पिरिट जब तक आपको ये तस्दीक ना दे दे कि तूने मुआफ किया है, maybe by words you are saying I forgive you, but your heart is saying I hate you. हो सकता है आपके वर्ड्स ये हैं मैं आपको माफ करता हूं, लेकिन आपका दिल ये है मैं आपसे नफरत करता हूं। Please don't do this. This is fake forgiveness. This is the forgiveness of the secular people. ये तो दुनिया माफ करती है, वो अंदर जो है वो गिरे रखते हैं और बाहर बोलते रहते हैं हमारे रिश्ते ठीक हैं, हमारे ताल्लुकात ठीक हैं। I'm challenging you and myself also. I'm not that preacher जो आपको कलाम सुनाऊं, मैं तो अपने आप को भी सुना रहा हूं। आओ हम दिल से माफ करें। इसका मतलब ये हुआ forgiveness springs out from the spirit. हकीकी तौबा उस वक्त होती है जब गुनाह मुआफ होते हैं और रूह बहाल हो जाती है, और सच्ची तौबा जब सच्ची जो है जब हम सच्ची मुआफी जब हम देते हैं तो फिर भी उस वक्त भी वो रूह से निकलती है और रूहों को बरकत मिलती है। सो आइए हम अगर आज आप और मैं खुदा की मानद बनना चाहते हैं, मेरी मिन्नत आइए दिल से माफ कीजिए। Not by words, not by pretension, बनावट से नहीं, out of heart. Think about it, please. Number 2 or 3, the way you want to count it. Number 3, love. Walk in love. पॉल ये नहीं कह रहा मोहब्बत की बातें करो, पॉल ये नहीं कह रहा मोहब्बत के पैगाम सुनो, पॉल ये कह रहा walk in love. इसका मतलब मेरी जिंदगी चलते फिरते ये पैगाम दे कि मैं अपने मसीही बिल्कुल चर्च से प्यार करता हूं। चर्च मीन्स द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जब बदन का कोई हिस्सा कहीं भी बीमार हो जाए, दुख में जाए, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, चाइना में, रशिया में, wherever, जब चर्च सफर करे और आप सफर करें, समझ लेना तू मोहब्बत में गहरा हो रहा है, वरना तू धोखे का शिकार है। True worship, saints, true love is this. आओ हम एक दूसरे से प्यार करें। स्टैंडर्ड क्या है प्यार का? लिखा है जैसे मसीह ने प्यार किया। तो क्या इसका मतलब है कि हम अपने भाइयों की खातिर कुर्बान हो जाएं? जी हां, कलाम में लिखा हमें अपने भाइयों की खातिर जान देना फर्ज है। You can sacrifice your life for the glory of Christ and for some brother in Christ and sister in Christ. Do you love? जब मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूं तो मैं उस गैर मशरूत मोहब्बत की बात कर रहा हूं जो खुदा ने आपसे की है। When I'm saying you should love, मैं ये कह रहा हूं ये वो मोहब्बत है जो बाप ने आपसे की और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। He gave his best for you. क्या आप भी अपना बेस्ट दूसरों के लिए देंगे? Give your best to the Lord. आइए अपना बेस्ट खुदा को दीजिए। You should give your best to the Lord. मोहब्बत से चलिए। एक और काम, अगर आप यीशु की मानद बनना चाहते हैं तो आइए, यीशु अपने लिए नहीं दूसरों के लिए रोते थे। Jesus did not weep for himself, he wept for others. He wept at the grave of Lazarus. वो लाजर की कब्र पर रोए। अगर आप यीशु की मानद बनना चाहते हैं तो आओ हम भी दूसरों के लिए रोना सीखें। दुनिया पेंडेमिक में मर रही है, दुनिया कोरोना से मर रही है, दुनिया
बदी में मर रही है, दुनिया मसीह पर ईमान लाकर ना लाकर मर रही है. They are dying because they are not believing in Christ. Will you love them? Will you weep for them? Cry for them, saints. आओ हम गुनाह में मरती दुनिया के लिए रोएं. आओ हम गुनहगारों के लिए रोएं. आओ खुदा से गुनहगार दुनिया के लिए पैशन और कंपैशन मांगे, आंसू मांगे, बोझ मांगे, फसल मांगे. फसल तो पक गई है लेकिन मजदूर थोड़े हैं. मिन्नत कीजिए बाप से कि वो मजदूर भेज दे. Love one another. I guarantee if you would love one another. I'm sorry if you cannot see me very clearly. Suddenly the electricity is failed in my home, but still charging is on, so I will continue my message. So let's move on, saints. Abhi aur bhi thoughts hai, but I'm jumping to the now. Why? अभी हमने सीखा कैसे हमने मसीह की मानद बनना है. इसमें और भी है. एक दो बातों पर मैं चैलेंज करूंगा जितने क्रिश्चियन लीडर्स मुझे देख रहे हैं. पॉल ये वाज़ेह लिखता है, मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बनता हूं. Are you like Christ? If you are like Christ, you are Christ-like leader. अगर आप मसीह की मानंद हैं तो आप मसीह जैसे लीडर हैं. अगर आप मसीह की मानंद नहीं है तो आप मसीह जैसे लीडर नहीं है. वो शख्स जो तब्दीली का बायस बनता है वो नहीं जो तकरीर कर लेता है, जिसको अंग्रेजी, इब्रानी, यूनानी आती है, बाइबल टीचर है. दुनिया उससे बदलती है जो मसीह जैसा लीडर है. आओ हम यीशु मसीह जैसे लीडर बने. Let's be leaders like Christ. आइए हम यीशु मसीह जैसे रहनुमा बने. I don't know, लेकिन मेरी ये दुआ है. This is my dream. This is my passion for myself and for all the leaders of the world. कि हम यीशु जैसे गुलाम लीडर बने. कलाम में लिखा उसने खादिम की सूरत इख्तियार की. वहां असल जुबान यूनानी जुबान में है, उसने गुलाम की सूरत इख्तियार की. Are you slave of God? Are you slave of the church? Man of God is slave of the church. पॉल कहता हम तुम्हारे गुलाम हैं मसीह की खातिर. Are you slave of your church? Are you slave of Christ? अगर आप मसीह की मानंद लीडर हैं तो मेरी दुआ है आपका चर्च आपकी पूरी पैरवी करे, क्योंकि आप उनको वहां ले जाएंगे जो हमारी हतमी डेस्टिनेशन है, हतमी मंजिल है. आइए इसके बारे में और गहरे तौर पर दरियाफ्त कीजिए. नेक्स्ट, फर्स्ट रीजन व्हाई, हमने क्यों खुदा की मानंद बनना है. लिखा है अजीज फर्जंदों की तरह. नंबर वन, व्हाई, क्योंकि आप खुदा के बेटे बेटियां हैं. बहुत साल पहले हम खादिम अक्सर फाइनेंशियल चैलेंजेस का शिकार रहते हैं, माली मुश्किलात, इम्तिहानों में से गुजरते रहते हैं. एक दिन मैं भी माली मुश्किल में से गुजर रहा था और गाड़ी में चला रहा था, और गाड़ी चलाते भी मेरा ज़हन ये था कि मैं फाइनेंशियल माली मुश्किलात का शिकार हूं. God spoke to me when I was driving my car. जब मैं अपनी गाड़ी चला रहा था खुदा ने मुझसे कहा, celebrate this, you are son of God. खुदा ने मुझसे कहा इस बात का जश्न मना कि तू खुदा का बेटा है. भूल जा तेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है, ये आती जाती रहेंगी, लेकिन सच्चाई ये है तू खुदा का बेटा है. तेरा नाम किताब हयात में लिखा है और मैंने तेरा नाम फरिश्तों के सामने लिया है. सेलिब्रेटेड सेंट्स, इसका जश्न मनाइए, इसको सेलिब्रेट कीजिए. एक और रीजन लिखा है बच्चों की मानंद बनो. असल जुबान में इसके लिए जो लफ्ज टेकनोन है
ये यूनानी जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब है ऑफस्प्रिंग, नस्ल। आप अपने बाप की नस्ल हैं। इसका मतलब क्या है? आपके अंदर बाप की फितरत नजर आनी चाहिए, बाप की नेचर नजर आनी चाहिए। इसलिए आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। क्या आपके अंदर खुदा की फितरत है? पीटर क्लेयर कहते हैं, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ, हमारे अंदर खुदा की नेचर हो। खुदा की फितरत के 4 पहलू थियोलॉजी में है, लेकिन एक पहलू यह है, खुदा मोहब्बत है, खुदा नूर है। God is light, God is love, God is consuming fire। खुदा भस्म करने वाली आग। हम सिर्फ ये कहते हैं वो बाप है, मैं कहता हूं इसका बैलेंस क्या है? वो भस्म करने वाली आग भी है। Let's get the balance, saints, not balance for the mobile। कलाम का बैलेंस ये है, तेरा खुदा मोहब्बत है, तेरा खुदा मोहब्बत है। Let's love one another। अगर तुम आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द। हम इश्तिहार लगाकर साबित करते हैं, हम क्रूसेड्स करके साबित करते हैं कि हम मसीह के शागिर्द हैं ना। आपकी हैरानी के लिए दुनिया क्रूसेड से बचेगी या नहीं, आई डोंट नो, उस पे होता है काम, लेकिन दुनिया आपके किरदार से भी बचती है। जब आप जॉब प्लेस पर हैं, ऐसे किरदार का मुजाहरा कीजिए जो यस्सु जैसा है। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप कलाम भी नहीं सुनाएंगे, आपके बगैर बोले वो निजात पा जाएंगे। कैरेक्टर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपका किरदार आपके अल्फाज से ज्यादा कुदरत रखता है। आइए इसको अंडरस्टैंड कीजिए। लास्ट रीजन, आपने कैसे मसीह की मानंद बनना है? मसीह की मानंद बनना है। लिखा है, पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। चर्च की प्रॉब्लम यह नहीं है कि चर्च में खुदा के लोग नहीं है। चर्च की प्रॉब्लम यह नहीं है कि चर्च में पास्टर नहीं है, वर्शिपर्स नहीं है, मेरे जैसे टीचर्स नहीं है, मेरे जैसे इवेंजलिस्ट नहीं है। चर्च की प्रॉब्लम यह है, चर्च में पाकीज़गी की कमी है। We are not that much holy as we all should, sir। हम उतने पाक नहीं है, हमारी आंखें उतनी पाक नहीं है, हमारी गुफ्तगू उतनी पाक नहीं है, हमारी सोचें उतनी पाक नहीं है, हमारे इरादे उतने पाक नहीं है। हम तो खिदमत में भी प्रोजेक्ट करते हैं। We have made ministry programs and projects। आओ हम पाक बने। तेरा यीशु पाक है। कलाम में लिखा, उसकी आंखें ऐसी पाक है कि वो बदी को देख ही नहीं सकता। Are your eyes holy, sir? क्या आपकी आंखें पाक हैं? अगर आपकी आंखें पाक नहीं है तो आज मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, जब भी आपके पैगाम सुने, खुदा आपको पाकीज़गी के लिए बुला रहा है। थेसलोनियन में पौल कहते हैं, उसने हमें नापाकी के लिए नहीं, पाकीज़गी के लिए बुलाया। Every church, every disciple of Christ। आज चर्च मेंबरों की जमात है, हालांकि चर्च शागिर्दों की जमात है। आओ फिर से शागिर्दियत के भेद दरियाफ्त करें। मेरा ईमान है, जब आप सच्चे शागिर्द बनेंगे तो आप सच्चे शागिर्दों को इनकरेज भी करेंगे, आपके जरिए भी सच्चे शागिर्द बनेंगे। God is calling you tonight for holiness। हम अक्सर टेलीविजन और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करते हैं, हम पोर्नोग्राफी का शिकार हो जाते हैं। I'm challenging you tonight, church, be holy। क्योंकि हम अक्सर तस्वीर ऐसी देखते हैं, ऐसी मूवीज देखते हैं जो नापाक है, उरिया है, बरहना है। पोर्नोग्राफी से कहते हैं। अगर आज रात तेरी जिंदगी का ये प्रॉब्लम है, ये पैगाम के दौरान खुदा तुझे आजाद कर देगा और तुझे अपनी मानिंद पाक कर देगा।
I'm not delivering a speech. I'm sharing the heart of God with you. खुदा का दिल ये है, पाक बन। खुदा का दिल है, मुआफ कर दे जैसे मैंने तुझे मुआफ किया है। प्यार कर जैसे मैंने तुझे प्यार किया है। जो मसीह की तरह मुआफ करता है, जो मसीह की तरह प्यार करता है, वो यकीनन वो शख्स है, वो परस्तार है, वो बाइबल टीचर है, वो खादिम है जिसका दुनिया इंतजार कर रही है, जिसकी मखलूकात कमाल आरज़ू से राह देख रही है। Why there are so many challenges in the church? There are so many challenges in the church, in the present church. There is fight in the church, dispute in the church, सियासत है चर्च में, लड़ाइयां हैं, नापाकी है, बदी है। Why? क्योंकि हमने अपनी जिंदगी का सुप्रीम गोल मिस कर दिया है, बड़ा हदफ मिस कर दिया है। हमारा बड़ा गोल यह है, खुदा की मानंद बन। ये बात याद रहे, जो खुदा की मानंद है उसकी टीचिंग खुदा की मानंद है, जो खुदा की मानंद है उसकी वसियत खुदा की मानंद है, जो खुदा की मानंद है उसका किरदार खुदा की मानंद है। Allow me to conclude with these words, with these questions. इन सवालात के साथ मुझे आज के पैगाम को रोकने दीजिए। इन सच्चाइयों पर आपने गौर करना है। क्या आपने दिल से मुआफ किया है? Have you forgiven from the heart? दूसरी सच्चाई आपने जिस पर गौर करना है, क्या तू मसीह की तरह प्यार करता? Are you the mime of love? क्या तू मसीह की तरह करता है? Are you weeping for the dying world? दुनिया गुनाह में मर रही है चर्च। ए खातिमो दुनिया, the world is dying. I cry for the glory of God tonight with you. Let's cry together. दुनिया गुनाह में मर रही है। आओ सारे शिकवे गिले भूल जाएं और इन दो सच्चाइयों को आज रात अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। दिल से मुआफ कीजिए, दूसरों से प्यार कीजिए, सबसे प्यार कीजिए। दूसरों के लिए वो दुआएं और वो आंसू बहा जाएं जो खुदा ने आपके हिस्से में रखे हैं। मेरा ईमान है, अगर आप ये कर रहे हैं तो आप मुबारक हैं, आप जलाली हैं। क्यों? क्योंकि आप खुदा की मानंद हैं। खुदा की बरकत और सलामती आपके साथ हो। मेरा ईमान है आज का पैगाम हम सबके लिए बाइस से बरकत हुआ है। I want to pray a few prayers. जी, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करने वाला था कि प्लीज दुआ में भी रहनुमाई कीजिएगा। आज हमें कुछ खुदाम ने, काफी सारे खादमों ने ज्वाइन किया। मेरे दिल में आ रहा था कि आप प्लीज खादमों के लिए जरूर दुआ कीजिए, क्योंकि जो कैरेक्टर आज हमने सीखा है, ये कैरेक्टर खादमों से कलीसिया में ट्रांसफर होना है। तो खादमों के लिए, सब सुनने वालों के लिए आप दुआ में रहनुमाई कीजिएगा, और जो आप हम जैसे पाकरू आपको लीड कर। May I pray for the sick people, sir? Sure. For the sick people, और आज जो सिचुएशन चल रही है इसमें जो नीडी है उनके लिए भी प्लीज दुआ कीजिए। Sure. Let's allow the Holy Ghost to rule. खुदा बाप यीशु के नाम में जितने तेरे पाक और मुबारक खादिम आज इस पैगाम को सुन पाए, ए खुदा हमें यीशु जैसा गुलाम बना दे। लिखा उसने गुलाम की सूरत इख्तियार की। ए खुदा हमें यीशु की मानंद गुलाम की सूरत पर ढाल दे। Make us slaves like Christ. हमें यीशु जैसा गुलाम बनने की तौफीक दे। इनकी खिदमत के लिए तेरा शुक्र, इनकी रोया के लिए तेरा शुक्र,
इनकी जरूरतों को पूरा कर, और इनका किरदार, हम सब का किरदार रोज बरोज तेरी मानंद हो, क्योंकि जब पॉल का किरदार यीशु जैसा होगा तो चर्च का किरदार भी यीशु जैसा होगा। अब जितने नीडी है, जरूरतमंद है, खुदावंद उनकी जरूरतों को पूरा कर। जितने बेरोजगार हैं उन्हें जॉब दे, जितने बीमार हैं उन्हें शिफा दे। Father, I come against every sickness. जितने बीमार हमें सुन रहे हैं या आपके रिश्तेदारों में कोई बीमार हो, आप जब ये दुआओं से सुनवाएंगे वो मुआवजा मिल जाएगा। खुदा बाप यीशु के नाम में अंधों की आंखें खुल जाए, पैरों के कान खुल जाए, हर बीमारी और कमजोरी का मारा कूटा आजाद हो जाए। अब आप खुदावंद पैंडेमिक से मारे टूटे कोरोना वायरस के पेशेंट्स यीशु के नाम में शिफा पा जाए। अब आप जितनी दुआएं हमने की, हम ईमान रखते हैं कि तूने सुना है। अब आप हमारी आज की वर्शिप वर्ड सारी काविश को कबूल कर ले। हमारा मकसद यह है कि सिर्फ तेरा नाम जलाल पाए, तेरी बादशाही फैल जाए। और आज के पैगाम में से अगर आपने पहली बार ये पैगाम सुना है और आपको गुनाहों की माफी का तजुर्बा नहीं है, मसीह के कुफारे पर ईमान ले आ। वो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर मुआ, कब्र में दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था। अगर आज तू ये दिल से ईमान लाएगा, तेरे सारे गुनाह मुआफ हो जाएंगे। God is forgiving the sins. खुदावंद निजात का काम कर रहे हैं। अब आप हम तेरे खादिम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यही आज की इबादत का मकसद कि इस पैगाम को वर्शिप को सुनने वाले गुनहगार खुदा निजात पा जाए। अब आप तेरा शुक्र तेरे खादिम पास्टर जुनैद, मिस्टाया मिनिस्ट्री और मसीहा मिनिस्ट्री द वे दे प्रनाउंस, इनके लीडर के लिए, तमाम साथी पासवानों के लिए, पास्टर जुनैद के लिए, तमाम खादमों के लिए तेरा शुक्र। इनको इनकी मिनिस्ट्री को बरकत दे, फैला बढ़ा, और इन सब को बरकत दे। हम सब के लिए, भाई जफर के लिए, हम सब के लिए, भाई खुरम के लिए, हम सब के लिए मिलकर खिदमत करने के मौके अनायत कर। और जलाल खुदा सालूस का हो, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरी दुआ कि खुदावंद तमाम सुनने वालों को, भाई जफर को, भाई जुनैद को, मुजद्दना को, भाई खुरम को, जितने अजीजों ने सुना, तमाम मुकद्दसीन खादमों को ये तौफीक बख्शे कि हम सब गुलाम की सूरत इख्तियार करें और यीशु की मानंद बनते चले जाएं। Thank you very much. God bless you all, sir. Thank you. Thank you very much, Pasab. Just we'll close the prayer formally. हम खुदाम यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआ में सब शामिल होंगे और उसके बाद हम कलमाते बरकत लेंगे खुदा के खादम पास्टर जावेद ताहिर साहब से। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसी दुआ को दोहराएंगे जो खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल दे रहे हैं। आमीन। मैं पास्टर जावेद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कलमाते बरकत से आज हम सब पर रुखसत करें। थैंक यू सर, ऑनर फॉर यू। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की रिफाकत और शराकत आप तमाम मुकद्दसीन के साथ और आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अब तक हो। आमीन आमीन। थैंक यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।